या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक हैं? जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, तो आए बढ़ते हैं अपने बड़े सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत कुरान। बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھا پیارے بچوں، مدینہ کے حاضرین ہمارے ناز بہن نے ماشاء اللہ بہت پیاری آواز میں تلاوت کری. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. چلیں مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری ہوا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے
کا نور سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو میں اپنا سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں، ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک ہی پیج جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نئے عربی الفاظ سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ جی، تو ہم گنتی سیکھ رہے تھے اور ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہاں پر موجود بچوں کو 1 سے لے کر 20 تک کی، یعنی 1 سے 20 تک کی ہم نے گنتی سکھائی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دہائیاں یاد کروائی تھی کہ 30 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 40 کو کیا کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا جس کے ذریعہ ہم 20 سے آگے جو عربی بنانی ہے، جیسے 21 کو کیا کہتے ہیں، 22 کو کیا کہتے ہیں، 23 کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح 31، 32، 33، 41، 42، 43، 20 اور 1 کیا ہوا، 21۔ 1 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، احدن، کیا کہتے ہیں، اور 20 کو عربی میں کہتے ہیں عشرون، کیا کہتے ہیں، عشرون۔ اب جب ان دونوں کو ملائیں گے تو بیچ میں ہم واو لگائیں گے، کیا لگائیں گے، واو، لکھتے وقت ہم واو لگائیں گے، تو یہ 21 یعنی 21 کو عربی میں احد و عشرون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، احد و عشرون۔ اسی طرح 22 ہے، 20 کو عربی میں عشرون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عشرون۔ جی، اور 2 کو عربی میں اثنان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ثانی۔ تو جب بیچ میں لگائیں گے، بیچ میں جب لکھیں گے تو اس کو بیچ میں واو بھی لگائیں گے، تو 22 کو عربی میں اثنانی و عشرون کہیں گے، کیا کہتے ہیں، اثنانی و عشرون۔ اسی طرح 3 کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثتن، کیا کہتے ہیں، ثلاثۃ۔ اور 20 کو عربی میں کہتے ہیں، 20 اور 3 کتنے ہوئے، 23، کتنے ہوئے، 23۔ جی، تو 20 کو عربی میں کہتے ہیں عشرون، کیا کہتے ہیں، جی، اور 3 کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثتن، تو اب 23 یعنی 23 کو عربی میں ثلاثتن و عشرون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، 21 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، احد و عشرون، کیا کہتے ہیں، احد و عشرون۔ 22 کو عربی میں اثنانی و عشرون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اثنانی و عشرون۔ اور 23 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ثلاثۃ و عشرون۔ 21 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، احد و عشرون۔ 22 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور 23 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 21 کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 22 کو عربی میں کیا کہتے ہیں،
इस्नानी व इशरूना, क्या कहते हैं? और 23 को अरबी में क्या कहते हैं? तो किस किस को याद हुआ? ये 3 अल्फाज किस किस को याद हुआ? माशाअल्लाह। चलो हम सुनते हैं, मुबीन भाई आपसे सुनेंगे भी। जी चले, कौन बताएगा कि 22 को अरबी में क्या कहते हैं? जी 22 को अरबी में क्या कहते हैं? 22 को अरबी में क्या कहते हैं? चले हम इनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम एजाज है। 22 को अरबी में बोलती हैं इस्नानी व इशरूना। जी, आपने जवाब दिया कि 22 को अरबी में इस्नानी व इशरूना कहते हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी याद कर लिया, शाबाश। चलो अब कौन बताएगा कि 21 को अरबी में क्या कहते हैं? जी 21 को हम इनसे पूछते हैं, मुबीन भाई। चले इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, इनसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बिल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मदनी रज़ा है। मदनी रज़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, माशा। 21 को अरबी में अहदुम व इशरूना कहते हैं। जी 21 को अरबी में अहदुम व इशरूना कहते हैं और मदनी रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चले अब कौन बताएगा कि 23 को अरबी में क्या कहते हैं? 23 को 23 को अरबी में क्या कहते हैं? ये हम पूछेंगे इंशाल्लाह आपसे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अयान है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि 23 व को बरकातुहू। अरबी में सलासतुम व इशरूना कहते हैं। जी आपने जवाब दिया 23 को अरबी में सलासतुम व इशरूना कहते हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमने आज 3 वर्ड याद करवाया और हमने आपको फार्मूला बता दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी प्यारे बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं सवालात के जवाब देने के लिए और तोहफे जीतने के लिए? तैयार हैं आप लोग? तोहफे भी जीतेंगे, ठीक है? चलें, पहला सवाल, अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हों और अजान शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? अनस भाई आप? जी और हसन भाई आप भी तैयार हैं? अनस, हसन भाई, अनस भाई और हसन भाई, फरीद भाई भी तैयार हैं, ज़करिया भाई भी, खालिद भाई आप भी, और चलें अब अनस भाई आप बताते हैं। अज़ान कुरान पाक पढ़ते हुए अगर अजान हो जाए तो कुरान पाक को बंद करके अजान का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, कुरान पाक की तिलावत को रोक कर फिर अजान का जवाब देना चाहिए और इसी तरह अजान के दौरान तमाम कामों को रोक दिया जाए। माशाल्लाह, तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे अनस अत्तारी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी अगला सवाल, बताएं वुजू करते वक्त सबसे पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा धोना चाहिए? वुजू का हिस्सा एक। हसन भाई की चॉइस। आज अपने सेगमेंट्स वाले भाइयों के ख्वाहिश के मुताबिक हम बच्चों से पूछेंगे। पहले हसन भाई, किन से? जिनसे हमने अरबी में नहीं पूछा था उनसे पूछते हैं। इनसे जी। वज़ू करने से पहले का वुजू करते वक्त सबसे पहले जिस्म का कौन सा वुजू धोना चाहिए, हिस्सा धोना चाहिए? हिस्सा धोना चाहिए। जी जी, कौन सा हिस्सा धोना चाहिए सबसे पहले? वुजू सबसे पहला जी, सबसे पहले मुंह धोना चाहिए। मुंह धोना चाहिए। सबसे पहले हाथ धोने चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले हाथ धोने चाहिए और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
اللہ. ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی تو اگلا سوال بتائیں، اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب فرید بھائی کی چوائس پہ کون؟ فرید بھائی کے پاس تو مائک پہچان دے پہلے. جی فرید بھائی کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھ لیں. ان سے پوچھ لیں. جی مائک دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المنان ہے. اذان پڑھنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے. مؤذن. اذان دینے والے کو آپ نے کہا مؤذن مؤذن کہا کہا جاتا جاتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کریں. سیدھا سے. جی مائک بھی دے دیں. ماشاء اللہ. جی نماز پڑھانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انس بھائی کی چوائس میں. ان سے پوچھ لیجیے. السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے. نماز پڑھانے والے کو امام صاحب کہتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو ہمارے فرید بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور میں سوال کرتا ہوں پھر آپ کو فرید بھائی اب دیکھتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں. جی تو اگلا سوال بتائیں، لفظ ایمان میں کتنے حروف ہیں؟ اور ایک اور سوال، دو جوابات دیں گے تو دو تحفے ملیں گے. اور اس بار ہمارے زکریا بھائی کی چوائس ہوگی. ٹھیک ہے. پہلا ہے بتائیں لفظ ایمان میں کتنے حروف ہیں، اور دوسرا اگر ہم 80 میں 80 میں 20 ملائیں 20 ملائیں اور پھر 99 مائنس کر دیں 99 مائنس کر دیں تو بتائیں کیا جواب آئے گا؟ لفظ ایمان میں کتنے حروف ہیں اگر ہم 80 میں 20 ملائیں اور پھر 99 مائنس کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایان ہے. ایان بھائی. ایمان میں 5 لفظ ہوتے ہیں. جی یہ جواب آپ نے دے دیا. اب اگلا جواب. ایک بچے گا. ایک بچے. کیسے ایک بچے؟ آپ 80 میں 20 پلس کریں گے پھر 99 مائنس کر دیں گے تو ایک بچے گا. ایک بچیں گے. زیرو نہیں بچیں گے. ایک بچیں گے. جی. ماشاء اللہ. آپ کے دونوں کے دونوں جواب درست ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ کی شیطانی جی. ماشاء اللہ. یہ آمین. جی تو اگلے سوال، نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ او سر قیمتی چیز کون بتائے گا؟ نون کو الٹا پڑھیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ خالد بھائی. ان سے اچھا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدنی رضا ہے. مدنی رضا بھائی. جی جواب. زال. جی نون کو الٹا. نون کو الٹا کریں. نون واو نون ہے نا، اس کو الٹا کر دیں. نون واو نون کیا بنے گا؟ جی نون کو الٹا پڑھیں گے تو نون ہی ہوگا. نون ہی ہوگا. کیسے ہوگا؟
जो उल्टा है वो उल्टा ही रहेगा। जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। माशाल्लाह। थोड़े कंफ्यूज हुए लेकिन हिम्मत नहीं आ रही माशाल्लाह। ये ले आपके लिए भी। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। माशाल्लाह। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे ज़करिया भाई ने एक खुशखबरी का बताया था। अब वो खुशखबरी क्या है, लेकिन बाप को दिल में हो रही होगी ना कि भाई जल्दी से खुशखबरी बताओ, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करें। जी, कॉल्स प्ले कर दीजिए। मैं बुशरा फातिमा तारिया पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मुझे सेगमेंट आए अरबी सीखे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमें बहुत इंफॉर्मेशन हासिल होती है। मैं आज नारा लगाऊंगी, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह हसन भाई। आए अरबी सीखे सेगमेंट की तारीफ़ की, माशाअल्लाह। वो तो सीखने को तो रोज़ इनको अरबी के अल्फाज मिलते हैं, और बाकी जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप खुद ये प्रोग्राम देख के बहुत कुछ सीखती हैं, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को स्कूल और मदरसे और ट्यूशन वगैरह जहाँ पर आप जाती हैं, तो आप इसमें इसकी दावत ज़रूर आम करें। जी जज़ाकल्लाह। आपने कॉल। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रज़ा तारिक है। ए मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला अच्छा लगता है। आया आया बच्चों की शाम आया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो मैं खुशखबरी के बारे में आपको बता रहा था। ज़करिया भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो खुशखबरी क्या है। जी मुबीन भाई, मैंने कुछ दिन पहले एक मदनी चैनल के नाज़रीन को खुशखबरी दी थी कि हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो उस सेगमेंट का नाम है प्यारे साहबा। जी बिल्कुल। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और वो हमारा न्यू सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारे सहाबा। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी ज़करिया भाई, आज आप हमें कौन से सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताने जा रहे हैं? आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताऊँगा। माशा अल्लाह। जी ज़करिया। तो जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने सेगमेंट प्यारे सहाबा में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनके बारे में अहम मालूमात देंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी की तारीफ़ क्या है। सहाबी वो इंसान होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो, या फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ हो और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो गया हो। ऐसे खुश नसीब मुसलमानों को सहाबी कहते हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। यूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को दुनिया में ही उनके जन्नती होने की बिशारत दी, लेकिन 10 ऐसे मखसूस सहाबा इकराम हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में साथ उनका नाम लेकर उनको जन्नती होने की बिशारत दी, उनके जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। तारीख़ में इनका लक़ब, ऐसे खुश नसीबों का लक़ब अशरा मुबशरा है। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं के बारे में यानी अशरा मुबशरा के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बकिया जो दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो आज हम जिन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे उनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आइए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ अहम मालूमात। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है बच्चों? अब्दुल्ला। आपका ताल्लुक़ कुरैश के ख़ानदान से है। कौन से ख़ानदान से है? कुरैश के ख़ानदान से। और 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। आप
रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो नबियों और रसूलों के बाद तमाम अगले और पिछले इंसानों में सबसे अफजलो आला हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम आपने ही कबूल किया। आप तमाम इस्लामी जिहादों में बहादुरी के साथ शिरकत करते रहे और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वज़ीर बनकर हर मोड़ पर आपके साथ रहे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा भी आप रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने 2 साल 3 माह 11 दिन खिलाफत फरमाई। 22 जमादुल उखरा 13 हिजरी मंगल की रात आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वफ़ात पाई। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुनव्वरा में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलुए मुक़द्दस में दफन हुए। तो ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मैंने आपको मालूमात दी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट टाइम किसी और सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इंशाअल्लाह मालूमात दूँगा। इंशाअल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम, नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। बच्चों की शाम। ये मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारे बच्चों की शाम के एपिसोड 62 का वक्त इख्तिताम पहुंचा। इंशाअल्लाह तो आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।